This Pankaj Kumar is every time connecting to audio. There. So let me start. Am I audible? Yes, sir. Yes. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रोलिंग प्रोसेस. सो रोलिंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और हम बताए कि रोलिंग में सबसे स्टार्ट करने से पहले वी आर टेकिंग सम assumptions that the roller should be rigid. And what is it? Rolling process. Satish Kumar. Who is Satish Kumar? Okay. So rolling process में सबसे पहला जो assumptions है कि the roller should be rigid Rigid. and it will be aligned. Alignment should be the proper. Otherwise, the roller may be bent or the material which we are wants to give the shape of decreasing size, it may be deflected if the roller arrangement is not proper. So the another feature is the another assumption is the entry volume. मतलब जो volume of the materials before the rolling and the volume of the materials after the rolling, it will be same or it is the constant. Means there is decrease in thickness, increase in length, but not increase or decrease in the width of the strip or the width of the workpiece. So हमारा width चेंज नहीं करेगा, लेंथ कॉम्पनसेट करेगा थिकनेस के डिक्रीज का. सो द वॉल्यूम इज बीइंग कांस्टेंट. ए पंकज कुमार, हेलो पंकज, सुनाई दे रहा है तुमको? पंकज, तुम्हारा बहुत टाइम से कनेक्टिंग टू ऑडियो रहता है जी. अभी तो सुनाई दे रहा होगा तुम्हारा. क्लिक ऑन द म्यूट बटन. छोड़ो, सुनो तुम लोग कथा. हाँ तो सर. हाँ, कौन है? अबीद सर
हाँ सर, बोल रहे हैं कि अगर रोलर का साइज डिफरेंट हो गया तो क्या होगा सर? नहीं, रोलर का साइज डिफरेंट नहीं रखेंगे बाबू। रोलर का साइज अगर ऊपर वाला रोलर और नीचे वाला रोलर का साइज अगर डिफरेंट रहेगा तो स्ट्रिप जो हमें डिजायर शेप है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि जब हमें थिकनेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, जब थिकनेस को हम रिड्यूस करना चाहते हैं और अधिक थिकनेस, तो उसको 2 रोल पास, 3 रोल पास, 4 रोल पास से गुजारते हैं। मतलब दे द मटेरियल्स गोज टू द 1 रोल पास, 2 रोल पास, 3 रोल पास। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज का रोलर का अरेंजमेंट बना होता है इंडस्ट्री में। सो रोलर का साइज किसी एक पर्टिकुलर के लिए ये फिक्स होता है, बोथ रोलर का। अगर ये रोलर का डायमीटर 40 mm है तो इस रोलर का डायमीटर भी 40 mm है। इसका 10 इंच का डायमीटर है तो इसका भी 10 इंच का डायमीटर होगा। मीन्स कहने का ये है, लुक एट द फिगर व्हाइट बोर्ड, द रोलर डायमीटर, एनी रोलिंग प्रोसेस, अगर रोलर का डायमीटर ये है तो नीचे वाला रोलर का डायमीटर भी इट विल बी सेम। ये बोथ अगर डायमीटर इसका, अगर डायमीटर इसका जो होगा वही डायमीटर इसका सेंटर, ये दोनों का जो डायमीटर होगा सेम होगा। अगर क्या है कि मटेरियल क्या होता है कि हमारा ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, इसका थिकनेस हम इतना डिक्रीज करना चाहते हैं, तो दैट इज वी विल यूज दिस रोलर अरेंजमेंट। इफ वी वांट to further reduce the thickness of this workpiece which are getting from the first pass, it is called the first pass. Then we use three high roll arrangement, where the material handling process will be goes on, and this strip will again goes to the another pass of different rolling arrangement, which the diameter will be something, will be the gap between the diameter will be something, will be small, so that the dimension of the thickness can be further be reduced। ये इसको यहाँ पे ले जाएंगे, चीज इसको यहाँ ले जाएंगे और फिर अलग करके 3 रोल मिल भी होता है, हम बताएंगे। फिर इस मटेरियल हैंडलिंग को दूसरे प्रोसेस में ले जाकर फिर से इसका अगर थिकनेस डिक्रीज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी डूइंग वन सिंगल ऑपरेशन द रोलर डायमीटर विल बी सेम। if we can't we do the roller dimension will be different, if something you have to assume that we will consider the roller diameter is different, means this one is the smaller diameter, the first roller, and the second roller is the bigger diameter. Then what happens, the reaction forces upon this material workpiece will have deflect, means something will give the greater speed, and the speed of the roller of both roller in a single pass also will be same. If the speed and the diameter, because if the diameter is, if speed of the roller is directly proportional to speed, because you know the VR is equal to 2 pi, क्या होता है, पाई डी n by 60. So look 60। at here, the velocity of roller is depend upon the diameter. If the diameter is greater, both the diameter is same, then the speed of the roller is same. If the for given RPM, if the diameter is different, then speed will be different. So the pressure applied to the strip is different, and when we take the component of the pressure or the force applied to the strip, it will be here something and here something. So the strip may be deflected strip will we have got, and this one is the this one is the defect of rolling process. So due to avoid the deflection of on the strip, we will take the roller is rigid and the same diameter and the same speed. Is it clear? यस सर। Hmm. So next thing,
है कि रोलर से जब हम रोलिंग करवाते हैं तो पहले इक्यू इक्यू एक्स्ट ग्रेन होता है और बाद में बीच के डिफॉर्मेशन जोन में वो थोड़ा सा फ्लैटन होता है। फिर वो जब स्ट्रिप मुझे थिकनेस जब रिड्यूस होता है तो उसका जो ग्रेन साइज है फ्लैटन हो जाता है। तो उसका क्या होता है कि पहले आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स कैन बी फॉर्म इनटू एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स इन द केस ऑफ रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग का कुछ टर्म और कुछ टर्मिनोलॉजी और नोमेनक्लेचर है, समथिंग दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बाइट। द एंगल ऑफ बाइट मीन्स द एंट्री टू द एग्जिट, जहां तक स्ट्रिप are in contact with the deformation zone is called the angle of bite. Let us look. नोट्स तो तुमको प्रोवाइड होगा ही, इसीलिए डोंट वरी अबाउट द नोट्स। सो दिस वन इज वन रोलर, it is, I'm trying to make some exact figures so that, so यहाँ पे मेटल it will be goes to touch the roller and here the metal workpiece are going to exit. So here it will be, this will be the arrangement actually. So here the metal exactly touch with the, and here it will be exit. So let us look, this one is the center and this one is the center of the roller. So the entry to the roller, the metal touch the roller and exit the roller, where the metal goes to exit or the workpiece has got the reduce the thickness and it will be exit. That angle is called alpha, theta or beta something. It is called angle of bite. Angle of bite. Here to here it is called the deformation zone. Here to here it is called the deformation zone. Here to here the metal are goes to deformation. So here it is the deformation zone. So we said that the at the entry our the speed of the speed of the, we generally touch the मेटल को, वर्कपीस को हम जब टच टू द रोलर एंड रोलर यहाँ पे स्पीड पकड़ा और यहाँ रोलर, तो रोलर्स आर रोटेटिंग this direction and this the clockwise and anti-clockwise direction, so it will be touch the spring. So initially the strip velocity v1 and here the velocity of exit v2 and this one is the roller velocity, it is called vr. So initially our the strip velocity v1 is less than roller velocity and here the at the exit the our strip velocity is greater than the roller velocity. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा ना कि स्ट्रिप, अगर रोलर का वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगा तो वो स्ट्रिप को पकड़ेगा नहीं, अंदर ड्रैग नहीं करेगा, और अगर एट द एंड अगर स्ट्रिप का वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगा तो दे मे नॉट बी पुल्ड आउट. सो you have to remember first thing that when it will entry the strip velocity is less than the roller velocity and at the exit the strip velocity will be greater than the roller velocity. So in between the deformation zone it is also we remember that our strip velocity is continuous is increasing. So I have also give these things in your notes that at the initially
This one is the point at the roller is contact with the strip. It is the point A. This is the center. At the exit, it is the point B. So at the point A, we will consider at A. At the exit, we will consider at point B. यहाँ exit हो रहा है. So the velocity at यहाँ पे V1 and यहाँ पे velocity at exit is V2, but it will be increasing. And at the mid there is a velocity of roller. Velocity of roller क्या होगा कि इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि इनिशियली द रोलर वेलोसिटी will be greater than the entry velocity, and at the exit the roller velocity will be, देखो नीचे है और v2 का वैल्यू ऊपर है. तो at an instant that our strip velocity is exactly equal to the velocity of the roller, that plane where the strip velocity is equal to the velocity of the roller is called the neutral plane. एंड न्यूट्रल प्लेन पे तो क्या होता है कि न्यूट्रल प्लेन होता है जहां पे वेलोसिटी दोनों का मैच करता है, स्ट्रिप का वेलोसिटी और रोलर का वेलोसिटी. सो जैसे जैसे हम ये यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, रोलर यहाँ के इस स्ट्रिप से टच हुआ और प्रेशर अप्लाई किया. नाउ द प्रेशर ऑफ द रोलर शुड बी increases and it will be increased up to neutral point. एंड जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा तो मैक्सिमम प्रेशर कैन बी अप्लाइड बाय द रोलर टू द स्ट्रिप इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल प्लेन. एंड जैसे जैसे रोलर का वेलोसिटी कम हो रहा है, रोलर का वेलोसिटी स्ट्रिप का वेलोसिटी से कम हो रहा है, मतलब अब रोलर छोड़ेगा अब मेरा वर्कपीस को और बाहर मेरा डिजायर शेप का स्ट्रिप निकलेगा. तब क्या होगा, धीरे धीरे न्यूट्रल प्लेन से रोलर प्रेशर विल बी डिक्रीज. सो यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ देखते हैं तो एट द ए पॉइंट टू बी न्यूट्रल प्लेन, इट इज अ न्यूट्रल प्लेन, एन इज द न्यूट्रल प्लेन पे इंक्रीज करेगा प्रेशर. एंड हेयर द प्रेशर एट द न्यूट्रल प्लेन, जस्ट नीचे न्यूट्रल प्लेन पे, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे एंट्री हो रहा है प्रेशर, यहाँ पे है ये इतना, और यहाँ पे न्यूट्रल प्लेन पे सबसे मैक्सिमम, फिर देन प्रेशर विल बी डिक्रीज. सो ये मैकेनिज्म एक्चुअली में होता है जिसके कारण मेटल को पकड़ता है रोलर और प्रेशर अप्लाई करता है, फिर न्यूट्रल प्लेन पे प्रेशर मैक्सिमम, देन प्रेशर विल बी गोज डिक्रीज एंड इट विल बी द लेफ्ट द वर्कपीस. सो दिस मैकेनिज्म इज हैपेंड in the case of rolling operation. And the another things which I have discussed that जहां न्यूट्रल प्लेन हो मिला हमें, जहां पर वेलोसिटी, दिस इज द न्यूट्रल प्लेन, मींस द वेलोसिटी ऑफ रोलर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप मान के चलेंगे हम यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल प्लेन, इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल प्लेन. न्यूट्रल प्लेन नोट में दिखाएंगे, इट इज रिटन ऑल द थिंग्स. फिर एट द न्यूट्रल प्लेन से पहले, मेरा वेलोसिटी जो है स्ट्रिप का, वो लेस देन है वेलोसिटी ऑफ रोलर का. मतलब क्या है कि मेरा स्ट्रिप का वेलोसिटी कम है, रोलर का वेलोसिटी ज्यादा है, मेरा स्ट्रिप लैग कर रहा है, जिसका वेलोसिटी कम है वो लैगिंग होता है. तो मेरा स्ट्रिप का वेलोसिटी लैग कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड द लैगिंग जोन. एंड वेयर द आवर स्ट्रिप वेलोसिटी इज गोज टू इंक्रीज, अब मेरा स्ट्रिप का वेलोसिटी लीड कर रहा है रोलर के वेलोसिटी से. सो न्यूट्रल प्लेन टू एग्जिट, इट इज कॉल्ड लीडिंग जोन. बिकॉज वेलोसिटी of 2, मतलब द स्ट्रिप का वेलोसिटी एग्जिट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रोलर. सो ये मैकेनिज्म है. और दूसरे नंबर बात, आप यू मे सी इन द, सो कमेंट बॉक्स में जाओ, पेंसिल उठाओ, पेंसिल कहाँ गया मेरा,
So it is the clear, the equiax grain, and the rolling process we have written. The process is used to decrease the thickness, decrease the cross sectional area of the metal, or by decreasing the thickness. So this one is the actually three-dimensional things, and here the roller will be used. Roller will be used, and because the thickness can't go, don't be will be changed. So thickness is here is the same. ये लास्ट क्लास में बताया thickness यहाँ है, और पहले इनिशियल ये था। थिकनेस मेरा HI है, विड्थ मेरा WI है, लेंथ मेरा ये है। लेकिन जब बाद में रोलिंग प्रोसेस होगा तो थिकनेस सेम रहेगा, लेंथ में सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा लेंथ, और थिकनेस हमारा घट जाएगा। ये रोलिंग प्रोसेस में होता है। सो वॉल्यूम शुड बी द कांस्टेंट। सो एंगल ऑफ बाइट हम समझ गए। एंगल ऑफ बाइट ये एंट्री टू एग्जिट का बीच का एंगल को एंगल ऑफ बाइट बोलते हैं। ये एंगल ऑफ बाइट डिपेंड करता है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में और हॉट रोलर का साइज में। अगर दोनों रोलर का साइज काफी बड़ा है तो कांटेक्ट एंगल कम होगा, और अगर अल्फा का वैल्यू कोल्ड वर्किंग प्रोसेस लेते हैं तो ज्यादा होगा। हॉट वर्किंग प्रोसेस में इट विल बी डिपेंड। हॉट वर्किंग प्रोसेस में फ्लेक्स होता है ज्यादा ऊपर में, तो बीटा ज्यादा होगा, मतलब कि अल्फा इस बाइट will be more. It is one more comment is there. Chat ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। सो द टर्मिनोलॉजी, पहला टर्मिनोलॉजी क्या है कि एंगल ऑफ बाइट किसे, दूसरा टर्मिनोलॉजी ड्राफ्ट किसको बोलते हैं। सो ड्राफ्ट इज डिफाइंड एज द रिड्यूस्ड इन द थिकनेस, हाउ मच रिड्यूस द थिकनेस, how much reduce the thickness, it is called the draft। means initial thickness मेरा HI था, और TI something somewhere it is written thickness TI initial thickness, TF the final thickness, here we written HI height, मतलब thickness को हम यहाँ H से लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो HI is the initial thickness and बाद का thickness H final है। तो the draft is called the difference between the thickness, so the initial thickness minus final thickness। so del H we can denote the del H initial thickness HI है, और मेरा फाइनल थिकनेस जो रिड्यूस होके आया वो HF है। so the difference between the thickness is called del H, and del H is del H will be the draft। the draft को पूछेगा तो it is the final initial thickness minus the final thickness is called the draft of the rolling process। now the maximum draft ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मेरा इनिशियल थिकनेस आपका गिवन है कि इट इज 1 इंच, इट इज इनिशियल थिकनेस इज 1 इंच and the final thickness is 0.75 inch। तो it is feasible to roll, we do the rolling process in this types of roller where the diameter of roller is given and the frictional coefficient between the roller and it is given। तो we have to check it कि कितना मैक्सिमम हम ड्राफ्ट उस रोलिंग अरेंजमेंट से निकाल सकते हैं। So that is checked by the maximum draft will be equal to mu square into r, mu square into r। अब mu square क्या है, the frictional coefficient between the roller and workpiece, and r is the diameter of the roller। अभी इसको हम कैसे ये हम लाएं सर, जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो बहुत कुछ तो मान लेना है, अगर नहीं मानिएगा तो हमको सब चीज को प्रूव करना पड़ेगा, सब चीज को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रूफ हम बता देते हैं कि मैक्सिमम del H कितना होता है, और धीरे धीरे ये सब चीज समझ में आ जाएगा। सो मैक्सिमम थिकनेस, मैक्सिमम ड्राफ्ट विच विल बी ऑब्टेन्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि इट इज फिजिबल कि इस रोलर डायमीटर से इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो इतना थिकनेस रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे म्यू स्क्वायर टू आर से। ये क्वेश्चन हम नीचे देंगे, बनाएंगे, इसमें पता चलेगा कि कैसे ये फिजिबिलिटी दिखता है और कैसे फिजिबिलिटी नहीं होता। तो लेट मी पहले एक्सप्लेन कि ड्राफ्ट का वैल्यू इज द HI माइनस HF एंड मैक्सिमम ड्राफ्ट कैन बी पॉसिबल म्यू स्क्वायर इनटू द रेडियस ऑफ द रोलर।
फ्रिक्शन कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, वार्म वर्किंग में डिफरेंट होता है, ये इसको यहाँ हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट थिंग है लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जरा सा गौर से देखेंगे। हम इस स्लाइड को हटा रहे हैं और एक यहाँ व्हाइट बोर्ड ले रहे हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इरेज दिस थिंग्स। आज जब तक रोलिंग खत्म नहीं होगा ना तब तक बने रहना है मेरे साथ। आज रोलिंग खत्म करना है, बार बार एक ही चीज हम नहीं पढ़ाते रहेंगे, बहुत टाइम लगता है पढ़ाने समझाने में। जब तक रोलिंग खत्म नहीं होगा आप लोगों को बने रहना है। एक बार ज्वाइन करना पड़े, दो बार ज्वाइन करना पड़े, ज्वाइन करते रहिए। चलो this will the touch, then this will goes to touch. इन लोग अपना फिंगर कौन है जी? यहाँ पे वो एग्जिट कर रहा है, यहाँ से वो एग्जिट कर रहा है। सो यहाँ से वो एग्जिट कर रहा है। सो let us consider this is the deformation zone. Okay, so this one is the center. यहाँ पे रोलर टच कर रहा था, this point is called A. Here is the center O, and this one is the perpendicular distance from the exit of the roller. This is called angle of bite. So this length is in the contact of the rolling zone. This one is contact of the deformation zone. So take it, when it will take the projection, there is the distance from A to perpendicular to the this line. This is line is always the perpendicular distance. Generally बीच में connection is unstable आ जाता है. This is called the B, perpendicular distance. So AB, it is the length L, and this AB is the contact length. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट है लेंथ का, जो रोलर और स्ट्रिप के बीच में कांटेक्ट है डिफॉर्मेशन जोन में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका प्रोजेक्शन से यहाँ लेते हैं, और ये AB जो है L लेंथ, इट इज कॉल्ड AB जो लेंथ है, यही लेंथ कहलाता है कांटेक्ट लेंथ और लेंथ ऑफ कांटेक्ट, LENGTH, लेंथ ऑफ कांटेक्ट। सो लेंथ ऑफ कांटेक्ट समझ गए। जहां तक स्ट्रिप इज इन कांटेक्ट वो हम पता करने के लिए इसी लाइन पे वो लेंथ ऑफ कांटेक्ट लेंथ हटता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, और दैट लेंथ AB इज कॉल्ड द एंगल ऑफ और लेंथ ऑफ कांटेक्ट। सो सर लेंथ कांटेक्ट वो आर्क वाला पार्ट होगा ना सर? आर्क वाला ही पार्ट है, बट वी विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस आर्क टू दिस लेंथ, or you can also can be determined if alpha is given, then also you have determined that the theta is equal to L by R. L by R also we can take, but when you see that the AB is the same as the L by R, so you may consider that AB is the length of contact. So 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। Look at that. And this is called the length of arc. This is the length of arc, and L is we will denote the length of arc AB, जो हम अभी फिगर में दिखाए, AB जो होगा length of arc होगा, and that will be equal to root under L, root under R into, मतलब R क्या है? Radius of roller, and del H क्या है? ड्राफ्ट है सर। ड्राफ्ट Drift मतलब मैक्सिमम थिकनेस, मतलब मैक्सिमम थिकनेस माइनस
मिनिमम थिकनेस मतलब इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो इक्वल होता है रूट अंडर आर इंटू डेल एच, मतलब रूट अंडर आर इंटू ड्राफ्ट, रेडियस इंटू ड्राफ्ट। नाउ द सेकंड थिंग, द न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन हम समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ हम लिख दिए हैं, इट इज द प्लेन where the workpiece velocity is equal to the roller velocity, that plane is called the neutral plane. Second thing कि यहाँ ये भी हम बता चुके हैं, दिस इज कॉल्ड द लैगिंग जोन और दिस कट पोर्शन इज कॉल्ड द लीडिंग जोन। सो लैगिंग जोन है मेरा, मतलब मेरा वर्कपीस का स्पीड कम है विथ रिस्पेक्ट टू रोलर, सो इट इज विल बी द बैकवर्ड स्लिप विल बी जनरेट। स्लिप क्या होता है ना, स्लिप क्या होता है, किसी को पुश करेंगे तो दो डिफरेंट वेलोसिटीज होगा, तभी कोई एक दूसरे को पुश करेगा और ड्रैग करेगा एक दूसरे के अंदर। तो स्लिप फेनोमेना जो क्या है ना, इंगेजिंग एंड डिसंगेजिंग का फेस में आता है, जो हम आपका गियर में पढ़ते हैं। लेकिन वहां भी ये ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी ही होता है। वेलोसिटी के चेंज में, वेलोसिटी में डिफरेंस होने के कारण ही स्लिप डिफरेंस होता है, और उसमें क्या होता है, गियर इंगेज होता है और गियर डिसंगेज होता है, तो हाँ स्लिप करते हैं। यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी में डिफरेंस है, सो स्लिप विल बी फॉर्म्ड एंड स्लिप इज ऑलवेज बी स्लिप विल बी कैलकुलेटेड इन द परसेंटेज फॉर्म, कितना परसेंट स्लिप है। तो उसका क्या है कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रोलर हम निकालते हैं। तो पहला जोन जो मेरा लैगिंग जोन है, वहां पे लैगिंग है मतलब बैकवर्ड स्लिप है, लीडिंग है मतलब फॉरवर्ड स्लिप है। तो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, मेरा स्लिप का वेलोसिटी ज्यादा बाहर निकल रहा है, इट इज द फॉरवर्ड स्लिप। यहाँ मेरा वेलोसिटी लैगिंग जोन है, मेरा स्लिप का वेलोसिटी कम है, इट इज अ लैगिंग जोन, सो बैकवर्ड स्लिप विल बी जनरेटेड। So speed is determined with respect to the other speed. So velocity difference with respect to जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी हम विथ रिस्पेक्ट टू रोलर निकाल रहे हैं। सो हियर द बैकवर्ड स्लिप विल बी जनरेटेड वीआर, द रोलर स्पीड ज्यादा है, मेरा स्लिप कम है, तो वी आर माइनस वी वन बाई द रिस्पेक्ट टू रोलर स्पीड इंटू 100, सो इट इज द बैकवर्ड स्लिप। एंड लीडिंग जोन में मेरा स्ट्रिप का स्पीड ज्यादा है, रोलर का स्पीड कम है विथ रिस्पेक्ट टू रोलर, सो इट विल बी द फॉरवर्ड स्लिप। सो यहाँ पे हम बता दिए वेलोसिटी है आर, वेलोसिटी ऑफ रोलर v1 है, वेलोसिटी ऑफ एट एंट्री ऑफ द वर्कपीस v2 हम लिख दिए हैं, वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द वर्कपीस। सो नोट्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे भी हम बताएं फॉरवर्ड लैगिंग जोन और लीडिंग जोन का नोट्स लिखे हैं। फ्रॉम द एंट्री टू न्यूट्रल प्लेन ऑफ द डिफॉर्मेशन जोन इज कॉल्ड लैगिंग जोन बिकॉज वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस इज लैगिंग, मतलब वेलोसिटी ऑफ द वर्कपीस हमारा कम है टू द रोलर। सो वेलोसिटी ऑफ द strip means the workpiece is less than the velocity of roller, so it will be lagging zone. Similarly, from the neutral plane to the exit of the workpiece, deformation zone is called leading zone because the workpiece velocity is greater than the roller velocity, so it is a leading zone. अब हमारा वर्कपीस क्या है, जो अब हमारा जो स्ट्रिप है वो लीड कर रहा है वेलोसिटी से, v2 is greater than vr, so it is a leading zone. So slip is when the material is dragged between the roller due to the velocity difference, slip is formed every time. This is, as I discussed in the gear where the maximum slip is possible, it is a negative drive. So the हमारा वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया, सो लीडिंग जोन में फॉरवर्ड वेलोसिटी, फॉरवर्ड स्लिप, एंड इन द केस ऑफ लैगिंग जोन इट इज अ बैकवर्ड स्लिप। सो इस सब टर्मिनोलॉजी को याद रखिए, और कोई पूछे क्यों होता है लीडिंग, तो हमारा वर्कपीस का स्पीड कम है, क्यों होता है लीडिंग, क्योंकि मेरा वर्कपीस का स्पीड ज्यादा है, क्यों होता है लैगिंग, मेरा वर्कपीस का स्पीड कम है, तो मेरा वर्कपीस लैग कर रहा है फ्रॉम द रोलर, इसीलिए हम लैगिंग जोन एंड लीडिंग जोन को हम सेपरेट करते हैं। सो यहाँ बैकवर्ड स्लिप एंड फॉरवर्ड स्लिप हम निकाल के रखे हैं, क्योंकि ऊपर में हम यही चीज दिखाए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे केवल नोट्स के लिए हम नीचे फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप को हम डिनोट कर दिए। इट इज यहाँ तक क्लियर है। सो इन द केस ऑफ
rolling force, roller, we have to determine the strain. Deformation हुआ तो strain कितना हुआ. So here we can determine the true strain and true stress. Flow stress, कितना stress generate हुआ at any instant. जब rolling कर रहे हैं तो हमारा material will goes to flow. हमारा मटेरियल क्या कर रहा है, फ्लो करना है ना, यहाँ से गया और यहाँ से निकल रहा है तो इट इज फ्लो. सो एवरी टाइम इट इज कॉल्ड द फ्लोइंग स्ट्रेस. एट एनी इंस्टेंट वेयर द causing the deformation, it will be caused to flow the material from inside the roller, so it is called the flowing stress acting on the roller to the workpiece, so it is called the flowing stress. So flow stress निकालना होता है. लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट हम ऊपर बताया आपको, रूट अंडर आर इंटू डेल एक्स निकालना होता है. एंड फोर्स अप्लाइड निकालना होता है, कितना फोर्स अप्लाइड हुआ. फिर टॉर्क एंड अदर थिंग, द पावर कितना कंजम्पशन होगा, रोलर का स्पीड गिवन है तो कितना पावर होगा ये भी निकालना होता है क्वेश्चन में. सो लेट अस सी वन बाय वन. ट्रू स्ट्रेन, अभी हम ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस का जिक्र नहीं करेंगे. इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. लेकिन वहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ना था तो हम नहीं बताया. लेकिन जब स्ट्रेन का बात करते हैं हम, तो एक्चुअली में स्ट्रेन होता क्या है, और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन द डायमेंशन ऑफ एनी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और एनी जेड डायरेक्शन. थिकनेस के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन मान के चले तो थिकनेस के डायरेक्शन में ये चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ. लेकिन जब हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के बात करते हैं, क्योंकि मटेरियल इज assuming that it will be in plastic deformation, so every time the thickness, width and length will be not be equal, so the deformation zone में true strain and true stress का बात करते हैं, area should be decreasing. So here the actually the true strain will become, it is called the engineering strain, but the true strain will be called will be calculated in case of deformation zone. It is will be ln hf minus hf by hi, मीन्स लेंथ थिकनेस के डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है. सो ln मतलब लॉगरिथमिक ऑफ ई बेस इन बाय hf मतलब इनिशियल थिकनेस बाय मतलब फाइनल थिकनेस बाय इनिशियल थिकनेस. इट इज द कॉल्ड द ट्रू स्ट्रेस. एंड ट्रू स्ट्रेन में क्या होता है, एक्चुअली द केस इज दैट इन द स्ट्रेस स्टेट डायग्राम, for the deformation zone of plastic deformation, the elastic limit point, the elastic zone is very limited and it will be goes into plastic state in more. So यहाँ पे क्या होता है कि अब stress is directly proportional to, यहाँ तक क्या होता है बाबू कि stress जो होता है directly proportional to strain होता है. But in the case where all the here जब हम निकालते हैं तो area will be continuous decreasing, so we can't be take attendance ले लेता हूँ, 1 मिनट बाकी है. फिर you are again you have to join the lecture after the finishing this. 1 मिनट के बाद कट जाएगा, फिर से ज्वाइन करना. टेस्ट 35 स्टूडेंट्स. So it is over now. देखिए कट जाएगा, फिर से ज्वाइन करना है, बता चुके. सो यहाँ पे क्या होता है